Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Am I audible? Yes, very clear. Chalo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, Today I alhamdulillah. Alhamdulillah. Welcome to all the sisters who are new and those who have attended the previous sessions. I hope you guys are kind of doing some revision or going back to the verses and checking it. It will only help in your understanding. I got quite a few questions after yesterday's session. So I thought that during our revision and few points which I felt is yet to be cleared, inshallah we'll take it up as well. So there is one point where I wanted to clarify. Nazia, you need to, 1 minute, I'll mute your mic. Okay. All right. Now, dua. Dua is a kind of a worship. Do you agree? Yes. Dua is a kind of a worship, isn't it? So whoever directs anything from them to other than Allah subhanahu wa ta'ala, then he is a mushrik, he is a kafir. And the proof of this is from Surah number 23, verse number 117. Let me repeat that again. So whoever directs anything from them to other than Allah subhanahu wa ta'ala, then he is a mushrik, polytheist, a kafir, disbeliever. अगर आप अपनी दुआ किसी भी एंटिटी अल्लाह को छोड़कर किसी और एंटिटी से करते हैं तो आप मुशरिक काफिरों में गिने जाते हैं और इसका प्रूफ सूरा नंबर 23 वर्स 117 में आता है कि whoever worships any other object of worship along with Allah which he has no proof for, then his reckoning will be with his Lord. Indeed, the disbelievers will not prosper. So in very clear words, बहुत वाइद है इसमें कि they are considered as disbelievers. Now, दुआ का जो है दो कैटेगरी होती है. We have to understand clearly these two categories. पहली एक होती है दुआ उल इबादा, दुआ of worship. What is that? We actually supplicate to Allah through worshipping Him, fasting, praying, performing Umrah or Hajj are all supplication through worship to Allah that He may forgive us and admit us into paradise. तो यानी वो जितने भी obligatory हमारे इस्लाम के जो pillars हैं, okay, that all goes under dua ul ibadah, dua of worship. There is a second category which is called dua ul masala. It is to directly ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us or to ask for any other need of this world or in the hereafter. So I hope I made myself clear that there are two kinds of dua. Dua ul ibadah, dua ul masala. Dua ul ibadah is the form of the obligatory worship. Examples from जो pillars of Islam है, जैसे salah, saum, praying, performing Umrah and Hajj, the basic ibadah that we do, that all falls under the category of dua ul ibadah. And the second category is जो हम additional dua करते हैं Allah subhanahu wa ta'ala से for forgiveness or for our need of this world or for hereafter, that goes under the category of dua ul masala. This is a direct promise from Allah and it's an order to call upon Him. This is out of the great mercy and generosity of Allah subhanahu wa ta'ala. जब Allah है खालिक मालिक मुदब्बिर, when Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who has the capacity to give, who has the capacity to forgive, who has the capacity to bestow all His mercies on us, then why we would go to any other entity, or we would think that we need an agent or a wasta or a wasila in between. Each individual has a direct relationship with their Rabb. So that is about dua. There is also another evidence from Surah 40, verse number 90. And your Lord said, call upon me, I will respond to you.
those who are too haughty and proud to worship me will enter hellfire in disgrace. And then usko supporting mein ek there is a hadith also which says supplication is the essence of worship. So dua jo hai wo इबादा की रूह है. अभी हम इसमें ना चंद एग्जाम्पल लेते हैं to understand it better in the form of three different levels and different categories में. जैसे कि call upon other than Allah for that which cannot be granted by any other except Allah subhanahu wa ta'ala, whether the one he's calling is alive or dead. फिर से सुने, वो कोई भी ऐसी चीज के लिए अल्लाह के सिवाय आप किसी जानदार इंसान या किसी डेड से तकाजा करें. एग्जाम्पल, आस्किंग द वली टू गिव शिफा. इसका डिसीजन, इसका वर्डिक्ट क्या होगा? स्ट्रेट डिसबिलीविंग, मुशरिक, नॉट अलाउड. क्योंकि वइदा मरितु हुआ फी यशफीनी, हु गिव्स अस शिफा? ओनली एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहु व तआला. अभी आप कहेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, इंशाल्लाह व्हेन आई कंटिन्यू यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि हर शय, हर वो खाना, हर वो पानी, हर वो दवा, हर वो हवा इजाजत लेती है कि इस बंदे को शिफा देनी है या नुकसान पहुंचाना है. तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, इट्स अ मामला ऑफ हार्ट, राइट? ये दिल का मामला, इंटरनल हिडन वाला मामला है. वी हैव टू बिलीव दैट शिफा इज फ्रॉम अल्लाह, everything is from Allah, and the relief is also from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, second scenario, call upon someone alive for what he is capable of. यानी for example, अगर हम किसी ऐसे बंदे को बोलें जिसके पास वो कैपेसिटी है काम करने की और उससे हमने तकाजा किया, एग्जाम्पल, so and so give me the food or water or etc., then ये दुआ की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये हमारी रोजमर्रा की डीलिंग है, राइट? दैट इज द वर्डिक्ट इज इट इज परमिसिबल. नंबर थर्ड सिनेरियो, कॉल अपॉन अ डेड और एब्सेंट फॉर व्हाट समवन लिविंग एंड नियर इज केपेबल ऑफ. यानी कोई दूर है, रिमोट है, बहुत दूर है, गैब का जिसको यानी कहते हैं ना रिमोट डिस्टेंस, और या फिर कोई डेड है, यू आर कॉलिंग अपॉन देम and asking them to give you food, to give you water, or to give you whatever your hajat is. Uska verdict, again, it will go under the category of disbelievers, mushrik. Scenario 4, calling upon Allah subhanahu wa ta'ala alone for everything that he needs. Example, oh Allah forgive me, Allah मुझे माफ करो, और अल्लाह से तौबा, या फिर अल्लाह ताला मेरी औलाद को शिफा दो या हिदायत दो. This verdict is tawheed, praised by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to understand very clearly कि हम कब और किस से तकाजा कर सकते हैं, and dua is definitely in a different category altogether. अब ये जो लोग मर चुके हैं या डिस्टेंट पे हैं, उनसे तकाजा करने का मानी क्या है? उनका बिलीफ ये होता है कि जो मर चुके हैं वो उनको सुन सकते हैं या उनके पास वो पावर है. अब जब ये बिलीफ अगर आपके अंदर आ जाएगा तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट मुशरिक. So this understanding that your needs, your requirement has to be directed to Allah subhanahu wa ta'ala, and the causes and means that we want to use it in terms of, yani for example, as I said, where it is permissible is based on the person to be present in front of you and the person to be able to do the task. Is there any question regarding this? Because I want कि आप जो है इस बारे में बिल्कुल क्लियर रहें कि कहाँ पर वो अलाउड नहीं है और कहाँ पर परमिसेबल है. सो ये आप समझ लें कि कंडीशन उसकी यही है कि जिससे आप रिलाई कर रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए और वो उस टास्क
करने के लिए एबल होना चाहिए. एंड डेफिनेटली ये जो अल्लाह की जो सिफत है उससे मिलता जुलता कोई भी काम नहीं होना चाहिए. मसलन आप ये उनसे एक्सपेक्ट करें कि उनके पास वो पावर है कि आपको हील करे और आपको शिफा दे और आपको फॉरगिवनेस के लिए बीच में वसीला बने, वो सारी चीजों से नहीं टकराना है. लेकिन वो आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए और वो एबल होने चाहिए कि आपकी जो हाजत है वो दुनियावी लिहाज से पूरी कर सके. Is there any question regarding this, please? If there is, we can discuss. If not, then we proceed. Baji, this will connected with the dua ibadah masala both. No, it will not connect with dua al-masala. Dua al-masala is this both dua al-ibadah and dua al-masala is directly only for Allah subhanahu wa ta'ala. But we will not call it dua for our muamalat. This is something that we are just seeking aid. यानी हम जो है ना जो हम लोग ने पढ़ा था कि हम किससे मदद मांगते हैं. It will connect to isti'ana. Isti'ana is seeking aid, right? But seeking aid की two conditions मुझे आप लोगों को बतानी थी कि asking from someone who is alive, who is near you, and who is able to do it. Besides that, if you ask and seek, that is not permissible. Okay. I have one question. Sure. अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, व्हाट वी गाइस डू, हम लोगों ने अक्सर सुना भी है कि हम दुआ करते हुए भी आस्क थ्रू अ वसीला, लाइक अल्लाह ताला इसके वसीले से ये कर दे, लाइक नबी के वसीले से ये कर दे, फलां बुजुर्ग के वसीले से ये कर दे. इज इट राइट और रॉन्ग? No, we have, that's what exactly precisely I told you कि इसमें अभी यानी अगेन वही वाली बात आ रही है कि क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हम लोग को डायरेक्ट किया था कि आप लोग दुआ करें मेरे वसीले से? Is there any evidence through Quran and Sunnah that proves कि आप वसीले से मांगे दुआ? Because हमारा directly connection है, अल्लाह ताला हमारे कहते हैं ना jugular vein से भी करीब है. When we have a direct connection, each one of us have a direct connection, and since there is no evidence for it, it will directly fall into bidah. तो हम लोगों को डायरेक्टली सारा तकाजा, सारी चीजें, स्मॉल, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी वसीला एंड वास्ता अल्लाह को डायरेक्ट करना है. Because that is where Aqidah Tawheed rotates. It is between you and Allah subhanahu wa ta'ala alone and nothing in between. और अपने आप को sincerely, खालिस, इखलास तौर से whenever you are purifying, you get more and more closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So definitely I know what you're saying. It was a very common practice. May Allah guide us and give us hidayah, and may Allah forgive us for whatever we have done in the past. And inshallah, we have to develop that strong relation, that raghba with Allah subhanahu wa ta'ala. Then and then only, when inshallah we will be on the right aqidah and on the aqidah and tawheed, inshallah. We continue. Any other question in this regard? बट बाजी, ये जो इन्होंने बताया है ना कि वसीले से दुआ मांगते थे, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ये होता था ना? क्या होता था? जब वो मौजूद थे तो उनके वसीले से लोग दुआ मांगते थे अल्लाह से. See, that way if you ask me, there is an evidence also where it says कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत भी हो गए थे तो रेन नहीं हुई थी, तो one of the chachas he made a dua and then he gave the wasta. But is there any strong evidence that this is the only way? Is this the only way to do it? Because आप एक बात ज़हन में रखें, हम कोई भी act of इबादा, because dua is also an ibadah, just now we discussed, हम अगर कोई भी ऐसा way को पकड़ के चलें बिल्कुल with that strong belief कि without this it will not happen. एक बात आप ज़हन में रखें, जब हम लोग वो जो third fundamental पे आएंगे ना, when we will talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's seeking knowledge of what our Nabi is, उसमें हम लोग उनका जो role है कि he will be doing the shafaat for us inshallah bi'idhnillah. What are the conditions for it? What all we are supposed to do ताकि हम उनके हाथ से हौज़े कौसर पे हमें मौका मिले, वो सब जब हम समझेंगे ना, तभी ही जाकर हम लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आएगी. क्योंकि जब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एग्जैजरेशन करते हैं ना, फिर हम वो एक डिफरेंट कैटेगरी में जाते हैं जो बहुत ज्यादा बिदा और शिर्क में मुब्तला है. We have to draw a very fine line because we have to strictly follow what he is doing. यानी अभी एक दो situational incidents को पकड़ के हमने उसको एक पक्का तरीका नहीं बनाना है. We have to go to the most recommended one. So if there is a confirmation that only by giving his wasta we will get forgiveness or we will be given our things that we are seeking, then we can take that path. But if that is not established, whenever Allah is like
very close to you. He says, ask me directly. अभी वो कुरान की आयत में भी था ना, directly you have to ask. So we will follow that, plain and simple. Right? इंशाल्लाह। या जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये जो है ना, ये सब डाइवर्जन ना बिल्कुल हेयरलाइन वाला होता है। मसलन एक स्मॉल थॉट, एक स्मॉल डाइवर्जन, एंड ये छोटा सा डाइवर्जन होता है, बट लॉन्ग रन में जाके ये बहुत डिफरेंट ट्रैक पे चला जाता नुकसान है। पहुंचाता या है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए कहते हैं बारीकी से तहकीक करो, सोचो, समझो, रीड करो, गो बैक टू द बुक्स, मेक दुआ, मेक इस्तिखारा, एंड देन फॉलो द ट्रैक। डोंट गेट इनटू एनी ऑफ दोस जस्ट सुनी सुनाई बात, प्रैक्टिस के ऊपर मत जाए। आप खुद आप चेक करें, खुद आप उस पे मुतमईन जब तक नहीं होते तब तक कि आप वो फॉलो ना करें। इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नाउ। Okay, yesterday we were talking about the supplication. No, we were talking about the knowledge of religion, the knowledge of our deen. And we spoke about the pillars. We spoke about La ilaha illallah and the affirmation and negation. I have a question for you from that. La ilaha illallah में कितनी कैटेगरीज हो रही हैं? यानी कितने टाइप के लोग आपको नजर आ रहे हैं? यानी 3 कैटेगरी अगर मैं पूछूं आपसे, can you define those 3 categories? La ilaha. Yeah. Ji, anybody? Did you understand my question first? Like you are asking Tawheed, Uluhiyya, Rububiyyat, No. Uluhiyyat I'm and Asma. asking La ilaha illallah में we spoke about affirmation and negation, right? Yes. Okay. अब इसमें actually देखा जाए, if you contemplate, there are not just 2 categories, there are 3 categories. Can I anybody think I can pinpoint that answer. third one? Ji. First Bolo. is there is no Fir- God. Sorry? First is there is no God. Okay. Second is except Allah, yeah, only Allah, Uh-huh. and they don't when the Prophet may be. And the third is, and the Prophet Sallallahu. No. No. Okay. You're missing something. Yeah, missing something. Yes. कोई और attempt करना चाहता है ये? Okay, let me I wrote just it, but it is not completed. Can you Right. repeat it, Baji, please? wait. I will without Yani making you more confused. I'll just tell it. See, when we say La ilaha illallah, La is negation. Okay. La ilaha illallah is affirmation. Okay. So there is one category which does not believe that there is no God but Allah, which means there is a category which says that they don't believe in any God. Atheism. Okay. Now, second category which says La ilaha, they accept that yes, there is Allah, but there are other gods also. So they are the mushriks, right? Yes. And then there is a third category of Muslims which negates the other gods and affirms only Allah. So the 3 categories right in front of you. Clear? Yes. All right. So that's about La ilaha illallah, the affirmation and negation. We will quickly go again through the definition of Islam, which we said it is to submit to Allah subhanahu wa ta'ala with tawheed. So submission and humility, of course, but it is with obedience and disassociate oneself from shirk and its people. So इसमें 3 keywords जो आपने याद रखना है वो है submit, obedience and disassociate from shirk and its people. And the 5 pillars of Islam, of course, you know it. Shahada, Salah, Saum, Zakah, and Hajj. Okay. We spoke about how it is categorized between physical worship, uske baad financial worship. We had categorized it already. Coming to the second level. The second level is Iman. How many pillars of second level? That also we discussed. Around 6 pillars. ठीक है? Now, Iman means belief. Linguistically, it is a belief. Certain faith in the heart, speech of the tongue, and action of the parts of the body.
Abu Huraira radiyallahu anhu said कि ईमान के 60 या 70 branches है. The least of them is removing something from the road, and जो highest degree का है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह. So again, the branch of iman is to say la ilaha illallah with a certain faith in the heart and the speech of the tongue. And then isi hadith mein so the la ilaha illallah is a matter of the heart, so it is hidden and inside. Another branch is to remove something from the road. So again, this is the apparent action of the limbs. Another branch is haya, modesty. It is again action of the heart. Now if I ask you a question, sometimes आप अगर किसी को बोलें कि आप सलाह क्यों नहीं पढ़ रहे हो या आप हिजाब क्यों नहीं ले रहे हो, तो वो कहते हैं अल्लाह knows what is in my heart. आप लोगों ने ये सुना होगा नहीं? ये बहुत कॉमन है. Yes, it is very common. अब इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? इसको आप कैसे जवाब देंगे? If somebody says ईमान हमारे दिल में है, Allah knows what's in my heart. So what would you एकदम हिकमत के साथ आप क्या जवाब देंगे? बाजी देखो, सबसे पहले अल्लाह ने तो बोले है कि नियत बहुत करती है अपने ऊपर, लेकिन नियत के साथ में जब हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हैं तो उसके कंडीशंस भी हमको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. तो अब नहीं ये मखसूस, यानी अभी ये मखसूस अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं सलाह पढ़ रहे हो या रोजा रख रहे हो या आप क्यों नहीं हिजाब ले रहे हो, वो कह रहे हैं हमारे दिल में है, अल्लाह नोज बेस्ट, तो आप उसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे? हाउ कैन यू address this kind of a response? Yes, Iman Humaira. is not Yes, Humaira. complete without amal. Sorry. Yes. Bole. Somebody is saying Humaira ya Salma? Yeah, I was saying Iman is not complete without amal. Very good. Excellent. Because Iman is not only the belief in the heart, but it is also a statement of the tongue and the actions of the limbs. तो ये हम स्टार्ट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ईमान इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ हार्ट. ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स एंड बिगिंस एंड एस्टैब्लिशेस इन द हार्ट, बट वो हमारे टंग से, हमारे लिम्स से, हमारे एक्शन से भी डिपिक्ट होना चाहिए. सो इट्स अ ट्राइंगल. इमेजिन अ ट्राइंगल. इट बिगिंस फ्रॉम द थॉट, फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड एंड सोल. वो जा रहा है आपके इनर में, हिडन में. उसके बाद आपके टंग पे वर्ड्स बन के आ रहे हैं, कलिमात, एंड देन अमल के तौर से वो आपके एक्शंस में आ रहा है. So until and unless the thought converts into words and the words converts into actions, it is not going to be completed. So ये half job done है, and I would only say this is an escape. May Allah give all of us hidayah, inshallah. So that's how, यानी जिसे कहते हैं ना कि there should be a difference between someone who possess knowledge and someone who is ignorant, and something which you handle with wisdom is called basira, यानी addressing it with the correct knowledge in a correct hikmah. Okay, तो कभी भी ये सब आप जहन में रखें कि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होने का जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे पॉइंट्स, कि हम ये नॉलेज अगेन हमने अपनी रिन्यू करना है इंटेंशन, कि हम ये नॉलेज इसलिए नहीं गेन कर रहे कि हम अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर समझें. नंबर 2, हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके जीतें या अपने आप को सुपीरियर बताएं, ये हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज अल्लाह ने हमारे ऊपर तारी किए हैं वो हम उसको अंजाम दे रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बिकम बेटर मुस्लिम्स, वी आर ट्राइंग टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद एन ओपन हार्ट एंड माइंड, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट्स या लोगों के साथ हमें जूझना नहीं है. हमारी कोशिश ये होनी है कि हमने दावा विद पीस, विद हिकमा करना है. राइट? सो ये सबर और हिकमत का मुजाहरा आपने हमेशा करना है, खास तौर से जब इल्म आने लगे तब बहुत ज्यादा. ठीक है? तो इंशाल्लाह आई कीप आस्किंग यू दिस रियल क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स विल हैपन. This is how people will come across you, और ये आपको इस तरीके से बड़े हिकमत से हैंडल करना है. In case if you don't know, just stay silent, go back, check and come back. But कोई गलत रूलिंग, कोई अपने तरफ से मन घड़त बातें कभी भी नहीं निकालनी है. Go by the books and जितना हो सके आप उसको हिकमत से हैंडल करें उतना बेहतर है. अगर नहीं आता तो खामोशी is the best thing. ईमान increases and decreases. This is because the degree of belief in the heart differs from one person to another.
हर एक इंसान का ईमान लेवल अलग होता है और एक इंसान का ईमान लेवल भी बढ़ता और घटता रहता है। इनफैक्ट जैसे अभी रमजान आ रहा है, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह सबका ईमान काफी पीक पे रहता है, बट ये आप कोशिश जरूर करें कि आप अपने ईमान का जायजा लेते रहें, एक दूसरे को रिमाइंड करते रहें, ऐसी चीजों में मुब्तला रहें, ऐसे क्राउड के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको रिमाइंड करते रहें। Believing in what someone tells you is not the same as believing something that you see with your own eyes. ये जो दिल का मामला है, बिलीफ का मामला है, यकीन का मामला है, ईमान का मामला है, ये ऐसा है कि ये हम उसको नाप नहीं सकते हैं, ना इसको हम बयान कर सकते, ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से ही आता है और ये बहुत बड़ी नेमा है। तो अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6th सेशन चल रहा है, हमने हमारे लाइफ के 6 आवर्स अगर इस चीज को सीखने में लगाए हैं सो फार, ये हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कोई आपकी दुआ का जवाब होगा कि आपने दीन की नॉलेज सीखनी है, तो अल्लाह ताला ने आपको आपके घर के कंफर्ट में बैठ के वो नॉलेज प्रोवाइड करने का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप कभी भी अपने आप पर या अपनी एबिलिटी पर नहीं अकड़ना है। इट इज ओनली एंड ओनली अल्लाह's ग्रेस, अल्लाह की मेहरबानी है जो हम लोगों के लिए चीजें आसान होती है। और अगर किसी बंदे के लिए अल्लाह खैर सोचते हैं तो इल्म का दरवाजा पहले खुलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल एंड कंटिन्यू सीकिंग। मैंने आपसे कहा था कि जो इल्म हुसूल की दुआ है उसको बाय हार्ट करते रहें और रोज दिल से करें दुआ। घर में भले 2 लोग होंगे, ट्विन्स होंगे या साथ में माँ बच्चा होगा या हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके ईमान में वेरिएशंस होगा। इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। इसका रेफरेंस मैं आपको दूंगी सूरत अल बकरा की 260 आयत से। And Ibrahim alayhi salam said, "My Lord, show me how you give life to the dead." He, Allah subhanahu wa ta'ala, said, "Do you not believe?" He, Ibrahim alayhi salam, said, "Yes, I believe, but to be stronger in faith." यानी हमारा ईमान होगा, लेकिन चंद चीजें, चंद प्रूफ, चंद एविडेंसेस हम लोगों के ईमान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। एंड इट गिव्स अस अ गुड फीलिंग। एंड कोई भी चीज जो आपके ईमान को ताजा करती है बहुत अच्छी बात है। एंड यकीन करें, जब जब आप कुरान के साथ जुड़ेंगे, जब जब आप कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, आप सीरा पढ़ेंगे, आप नबियों की और खलीफाओं की एंड खुलफाए राशिदीन वगैरह की स्टोरीज पढ़ेंगे, आप इंशाल्लाह आप देखें आपका ईमान कौन से लेवल पे जाता है। बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम एंड उधर हमारा झुकाव होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए और नियत हमारी खालिस होनी चाहिए। सो द 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम: believing in Allah subhanahu wa ta'ala, believing in his angels, believing in his books, believing in his messengers, believing in the day of judgment, and believing in al-qadar, the pre-decree, it's good and it's evil. मैं वापस रिपीट करती हूँ, ईमान के 6 सुतून है: बिलीविंग इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीविंग इन अल्लाह के फरिश्ते, बिलीविंग इन अल्लाह की किताब, प्रीवियस किताब भी इंक्लूडेड है इसमें, बिलीविंग इन हिज मैसेंजर्स, सारे मैसेंजर्स, बिलीविंग इन यौमुल आखिरा और बिलीविंग इन कदर। सो व्हाट इज टू ट्रूली बिलीव इन अल्लाह? द फर्स्ट पिलर। तो हमें तो ये पता है, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ला इलाहा इल्लल्लाह पीपल, तो हमें तो पता है अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड he has invented, he has started, he has created. So alhamdulillah, that is one thing that we have to continuously believe in. Belief in the existence of Allah the Most High. और उसके अंदर क्या है? उसमें है, इस पॉइंट के अंदर 4 things which we should clearly identify in our hearts and mind. First is al-fitrah. Al-Fitra, I'm sure you have heard that term before. The natural disposition. Fitra is the belief in him that Allah created in every human being. Mankind needs not to be taught this belief or think about how to possess it. यानी कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो अपने फितरा पे होता है। This is the fitra we are talking about, कि वो एक्चुअली मुआहिद पैदा होता है, वो मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए जब कोई कन्वर्ट होता है उसको हम कन्वर्ट नहीं कहते, उसे हम रिवर्ट कहते हैं कि वो फिर से अपने असल पे आ गया है। तो ये जो हमारे अंदर का फितरा है वो आइडेंटिफाई करता है
कि अल्लाह इज द क्रिएटर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी का फितरा करप्ट हो जाता है तो वो इस चीज से बेनिफिट नहीं कर सकता। And there is a hadith to support what I'm saying. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, every newly born will be born having fitra. However, his parents will either convert him to Judaism, Christianity or Magism. ये फायर को वर्शिप करते हैं। दिस इज इन सही अल बुखारी। तो हमारे अंदर फितरा जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। उसके बाद जो सेकंड मैटर होता है वो है अल अक्ल, द इंटेलेक्ट। यानी हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंस लेवल एक दिया है। इवन दैट इफ यू उस पे अकल का भी अगर इस्तेमाल किया जाए तब भी आप आइडेंटिफाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को करेंगे। यानी यू वुड हैव सीन कि हमारे जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स हैं, अभी भी काफी सारे रिसर्चर्स ने, उनकी लास्ट स्टेटमेंट जो होती है वो यही होती है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर कंट्रोलिंग इट, हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल, जिनके आईक्यू लेवल्स आर सुपर हाई, वो भी इसको कंक्लूड करते हैं कि देयर इज अ सुप्रीम पावर। सो आपकी द इंटेलेक्ट, द अल अकल also will conclude that there is one creator, one power, one supremo, omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala. Then what comes is the revelation. This is also a proof in itself. Okay, like if you say Quran is a miracle. It's a word of Allah subhanahu wa ta'ala without any flaws, without any galti, without any interference of human. Even that's a proof that Allah is the supreme power. And number fourth is what you experience and perceive. यानी आपकी लाइफ, हर एक की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, एंड हर एक की लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आपका बिलीफ जो है वो, आप उस बात पे मजबूर हो जाते हैं या आप उस बात को कंक्लूड कर जाते हैं कि यस देयर इज अल्लाह एंड ही इज द ओनली वन एंड ही इज द मेन कंट्रोलर। तो वो अलग अलग आजमाइशों की शक्ल में आती है, बीमारी, मौत या किसी भी तरह की तकलीफ या कुछ भी, बट आपका बिलीफ सिस्टम जरूर शेक होता है एंड आप कहीं ना कहीं से अल्लाह को आइडेंटिफाई जरूर करते हैं। सो ईमान इन हिज लॉर्ड और रुबूबिया, अगेन अल्लाह अलोन इज द लॉर्ड, ही इज द वन हु क्रिएट्स, ही इज द सॉवरेन किंग एंड उनका ही कमांड है और रहेगा इंशाअल्लाह। ईमान इन अल्लाह सोल राइट ऑफ वर्शिप, इबादत के लायक भी अल उलूहिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और कोई ये दर्जा शेयर नहीं करता, ना कर सकता है। उसके बाद बिलीफ इन अल्लाह's नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, जितने अल्लाह के खूबसूरत नाम है और जो सिफत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही है एंड अल्लाह पे ही ज़ेबा देते हैं और कोई शय या कोई चीज उसके करीब आ भी नहीं सकती। So what are the fruits of Iman in Allah subhanahu wa ta'ala? The believer implements and realizes the tawheed of Allah the Most High. और उसके बाद उनका जो love for Allah है, मुहब्बा, वो complete होता है। आप हर एक सिफत के नाम जो है डिफरेंट मौके पे दुआ में आप शामिल करके आप you can feel the power and the presence कि I don't have to fear of anything because हमारा बचाने वाला जो है वो मानने वालों से काफी बड़ा है, सुभान अल्लाह, and he is the most powerful, why should I be afraid? And then accomplishing worship of him by fulfilling his commands. जब आपको अल्लाह के साथ, मैंने आपको बताया था 3 इमोशंस, लव, होप एंड फियर, जब आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, जब आप अल्लाह से प्यार करते हैं, जब अल्लाह ताला से डरते हैं, तो फिर आप वो गुनाह और सिन और कुफर और शिर्क से अपने आप को बचाएंगे, आप उससे इज्तनाब करेंगे और आपको जो प्रोहिबिशंस है वो भारी इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। बिकॉज आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आप अल्लाह को प्लीज करें। फिर अल्लाह को प्लीज करने के लिए वी फॉलो द कमांड्स एंड वी स्टॉप एट द प्रोहिबिशंस। नंबर 2 पिलर, बिलीव इन हिज एंजल्स, मलाइका। सो व्हाट इज द मैटर? इसमें हमारे लिए जानने के लिए क्या है, यानी व्हाट इज देयर टू बिलीव इन द एंजल्स? सो देयर आर अगेन 4 मैटर्स ऑफ ईमान इन अल मलाइका। टू बिलीव इन देयर एग्जिस्टेंस, यानी अभी आप देखें ये जो ईमान की जो सुतून है ना, ये सब गैब वाली चीजें, यानी इसको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ये मामला दिल का है और इसमें यकीन 100% होना है। तो आप सोचें कोई चीज जो आपने नहीं देखी है लेकिन उसके होने पे आपको 100% यकीन नहीं होगा तो आप दीन में शामिल नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सुभान अल्लाह, इस पे यकीन 110% होना है।
So what are the 4 matters? It is to believe in their existence, that they exist. जिस तरीके की definition और explanation हमको कुरान और सुन्ना से मिलती है, we have to believe in that. They are unseen to us and Allah subhanahu wa ta'ala created them from light. To believe specifically in those whose name we know. Example, Jibril alayhi salam. यानी हमको कुरान और हदीस से चंद नाम जो हैं हमें revealed हुए हैं. So we have to believe in those specifically. General and comprehensive belief in the angels whose names are not known to us. तो हम specifically उनमें believe करते हैं जिनके नाम हमें बता दिए गए हैं, and generally हम उनमें भी believe करते हैं जिनके नाम हमें नहीं बता दिए गए. Number 3 is to believe in whatever has been described to us of their attributes. यानी अब ये वो उनके पर, उनके एक पर की ताकत, उनकी जो यानी अल्लाह ताला ने जो उनकी अलग अलग ड्यूटीज लगाई हुई है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसका क्या पावर है, ये सब हम लोगों को कुरान और हदीस से मिलती है. तो उससे उन सब एट्रीब्यूट्स, उन सब सिफत के ऊपर भी हमारा यकीन होना चाहिए. जैसे we have some descriptions of Jibril alayhi salam reported by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the angels and their physical being, यानी वो कैसे होंगे, उनकी शक्ल किस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जब जाहिर हुए थे, वो सारा एक्सप्लेनेशन हमारे पास है. तो we have to believe in all those explanations and हम लोगों को उसमें पक्का पक्का यकीन रखना है. To believe in the duties that we know of which they carry out by the command of Allah subhanahu wa ta'ala the most high. यानी जैसे मैंने बताया कि उनकी एक मखसूस ड्यूटीज लगी हुई है. किसी का वेदर के ऊपर, कोई हेल के गेट पर होगा, कोई अर्श को संभालेगा, कोई जहन्नुम को खींच के लाएगा. वी नो ऑल दैट. कोई रूह कब्ज करेगा. सो वी नो ऑल दैट. तो इस तरीके से हमको उनकी ड्यूटीज, उनकी सिफात, उनकी कैटेगरी, उनका अपीयरेंस, उनके एग्जिस्टेंस, इन सब में बिलीव करना है. The angels glorify Allah subhanahu wa ta'ala and declare him free from imperfections. और वो उनकी दिन रात इबादत करते हैं. And some of them, as I said, उनकी एक particular duty है. तो इस ईमान का fruits का फायदा क्या है? What are the benefits of having this particular iman? Ilm of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, his power, his authority and his dominion. जैसे मैंने कहा ना आपको, बार बार जब ये सब चीजों को देख के हमारा दिमाग जो है और पुख्ता, और दिल हमारा उस पे यकीन हमारा बढ़ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सो बिग, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सी द पावर, कि जिसने क्रिएट किया है उसके लिए सिर्फ कुन का मामला है. और हम लोग सोचते रहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक एट माय लॉर्ड, लुक एट द पावर ऑफ माय रब. उससे हमारे दिल में थैंकफुलनेस और ज्यादा बढ़ती है. उसके बाद हमें अल्लाह के लिए और ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि किस तरीके से अल्लाह ताला ने निज़ाम हमारा चलाया है, किस तरीके से हमको संभाला है, हमको नर्चर किया है. बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली सर्विंग अस, दे आर हेल्पिंग अस फॉर आवर एग्जिस्टेंस. सो सुभान अल्लाह, आपको और ज्यादा शुक्रगुजारी आती है. एंड देन लव ऑफ द एंजल्स फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह द मोस्ट हाई. एंजल्स की जिस तरीके से वो अतात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला की, कैसे वो अल्लाह ताला से हुक्म का फरमान लेकर चलते हैं, तो उससे आपको और ज्यादा एंजल्स के लिए भी आपको प्यार होगा कि वो किस तरीके की इबादत और अतात करते हैं. लेकिन एक बात मैं कह दूं, अगेन देयर इज अ कैटेगरी जो एंजल्स के लिए, एंजल्स के थ्रू दुआ मांग रही होती हैं या एंजल्स की इबादत कर रही होती है, दैट इज डेफिनेटली नॉट अलाउड, ममनू. कहीं पर भी एग्जैजरेशन, हद से ज्यादा तजावुज आप जहां भी कर जाएंगे वहां बिदा और शिर्क शुरू हो जाएगा. इसीलिए अ फुल स्टॉप इज अ नेसेसरी पॉइंट. जहां पर रुकने को कहा गया रुक जाए, जहां पे चलने को कहा गया चलते चलें. कमिंग टू नंबर 3, हिज बुक्स. कुतुब, इसमें हमारे लिए जानने वाली क्या चीजें हैं? टू बिलीव दैट दे वर सेंट डाउन बाय अल्लाह द मोस्ट हाई, यानी जो किताबों कुतुब के बारे में हमें बताया गया हुआ है, we have to believe कि वो अल्लाह की तरफ से आई है. Allah sent them down to his messengers as a mercy and guidance for the creation, so that we are able to attain success and happiness in this life and next. ये जो किताबों का सिलसिला है, ये हमारी हिदाया के लिए आई है, और ये हमारे ऊपर एक मेहरबानी है अल्लाह की तरफ से कि हमें गाइडलाइंस क्लियरली दी जाती है. और किताबों का, नबियों का, रसूलों का आना हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी है, ताकि हम इस दुनिया में और आखिरा में कामयाब हो सकें.
Point number 2 is to believe in those books whose names were known to us. तो हमें कौन कौन सी किताबों के बारे में पता है? कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल की गई थी, तौरात जो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील जो ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़ुबूर जो दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, और सुहुफ जो कि इब्राहिम अलैहि सलाम पे आए थे. To affirm whatever reports are established as being contained in them. अगेन अफर्मेशन की बात आ रही है कि जो कुछ चीजें उसके अंदर रिपोर्ट की गई थी हमें उनमें बिलीव करना है. कुरान ऑल ऑफ इट इज अफर्म्ड, यानी कुरान जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुरान रिवील हुआ तो बाकी सारी चीजें जो है उसको शन कर दिया गया, निगेट कर दिया गया. उसमें बिलीफ बेशक है कि ये अल्लाह की तरफ से आई थी, लेकिन फिर इसका मकसद ये नहीं है कि कोई और किताब कुरान को सुपरसीड कर जाती है. कुरान इज द अल्टीमेट फाइनल कंप्लीट क्लोज्ड सील्ड. इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सुप्रीमो है इन बुक्स में से जो मैंने अभी मेंशन किया. तो हमारे लिए इट इज अफर्म्ड, कुरान इज द फाइनल टेस्टामेंट आई वुड से. बट प्रीवियस बुक्स जो हैं वो जो चेंज हो गई हैं, डिस्टॉर्ट हो गई हैं, इसलिए हम उसको अफर्म नहीं करते, हम सिर्फ कुरान को अफर्म करते हैं. सो that will be your point number 3. And point number 4, to act upon the rulings that have not been abrogated. We must be pleased with the rulings and fully submit to them. यानी कि हम अब ये कुरान के बारे में ही बात चल रही है कि अगर कुरान के अंदर जो रूलिंग्स अहकामात दिए गए हैं उसमें हमें कंप्लीटली सबमिट करना है, रिगार्डलेस कि हमें वो पसंद हो या ना हो. We have to understand the hikmah behind it. All the other books जो है वो कुरान के आने के बाद उसके जो रूलिंग्स है उसको नलिफाई कर दिया गया है. So we are only going to affirm and approve what has been mentioned and confirmed in the Quran. So ये 4 points in regards to kutub. And some fruits of iman in al-kutub is ilm that Allah takes care of his servants and send down a book of guidance to each people. तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट देती है कि look how Allah is nurturing you, कि वो आपकी हर नीड का ख्याल रखते हुए आपके लिए हिदायत के लिए किताब भेजी है. Ilm that Allah's great wisdom prescribe laws for each people according to their condition. And Quran contains everything, right from the science to geography to archaeology to everything. तो हमें और किसी चीज की शय की जरूरत नहीं है. आज भी रिसर्चर्स कुरान के थ्रू ही इस्तेमाल कर रहे हैं रूल्स एंड लॉज एंड डिस्कवरीज एंड रिसर्चेस. सो इट इज अ कंप्लीट बुक बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर. तो उसका जो कहते हैं ना कि कोड ऑफ कंडक्ट या उसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी वो सारी मेंशन है बिकॉज खालिक हैज क्रिएटेड दैट. एंड वी हैव टू गिव थैंक्स टू अल्लाह फॉर हैविंग ब्लेस्ड अस विद दैट, क्योंकि बहुत बड़ी नेमा है हमारे लिए कुरान. सो हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है. कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, हिज मैसेंजर्स, रसूल. इसके 4 मैटर्स क्या हैं? व्हाट इज इट दैट वी शुड बिलीव इन अंडर दिस कैटेगरी? इसमें हमें बिलीव करना है कि वो ट्रूली अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं. ये रसूल अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं. And whoever disbelieves in the messengership of one of them, they have disbelieved in all of the messengers. The messengers were humans and not angels. अब इसको आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि आपको जो फेवरेट हैं आप उनको उन पे बिलीव करें और बाकी को आप ना बिलीव करें या उनको आप रिजेक्ट करें, नॉट पॉसिबल. जो नबी, लाइक फॉर एग्जांपल इन कुरान 25 मैसेंजर्स हैव बीन मेंशन्ड, इजंट इट? तो आपको जो है उन सब में बिलीव करना है कि वो अल्लाह की तरफ से आए हुए नबी या रसूल हैं और वो इंसान थे, ना एंजल थे ना कोई और एंटिटी थे, बट वो सिर्फ इंसान थे. और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं जो ह्यूमन पे लागू होते हैं वो उन पे हैं. ऑफ कोर्स उनका एहतराम एंड दर्जा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बड़ा होगा, मगर इतना नहीं कि उनको इबादत के लेवल पे ले जाया जाए. ठीक है? तो यू हैव टू बिलीव दैट दे आर द मैसेंजर्स एंड दे आर ह्यूमंस एंड नॉट एंजल्स. To believe in each of them in particular whose name we know. यानी जिस तरीके से मेंशन किया गया है कुरान में उस तरीके से we have to believe in each one of them specifically. Example, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Nuh alayhi salam, etc. etc. We have a general and comprehensive belief in all the messengers whose name we do not know.
बिकॉज जितने मेंशन किए गए वो एक लिमिटेड नंबर है एंड बाकियों पर भी इन जनरल हम बिलीव करेंगे. टू अफर्म वॉट एवर इज नरेटेड ऑथेंटिकली फ्रॉम देयर रिपोर्ट्स, यानी जितनों की भी हमारे पास हदीस मौजूद हैं, किस्से मौजूद हैं, उन पर भी आपको बिलीव करना है जो ऑथेंटिक है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक सोर्सेज. And then to act in accordance with the revealed law of the messenger who was sent to you. तो सिर्फ सुनना और बिलीव करना नहीं, अगेन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, कि जो अहकामात और लॉ उस मैसेंजर पे लागू किया गया है उस पर भी बिलीव करना. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sent to all of mankind. So what are the fruits of iman in ar-rasul? Ilm of Allah's mercy and his great care for his servants. He sent messengers to them as a guide. तो ये भी जैसे किताब भेजी गई थी हमारे हिदाया के लिए, मैसेंजर्स हमारी हिदाया के लिए भेजी गए थे, एंड ये अल्लाह की एक मेहरबानी है और ये अल्लाह का एक रहम जाहिर करता है हमारे लिए. गिविंग थैंक्स टू अल्लाह फॉर दिस ग्रेट ब्लेसिंग, यानी हम आज आप सोच लें कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर एक चीज नहीं बताई होती तो हम कितने लॉस्ट होते हैं. हर एक चीज, वुदू कैसे करना है, सलाह करनी है, यहाँ तक कि यूरिनेशन का तरीका, हर एक तरीका सुभान अल्लाह हमारे नबी ने हमको बताया. और कोई उसमें यानी पर्दा नहीं रखा. इवन पीरियड्स जैसे मामला, निफास, हैज, इस्तेहाजा, ये सारे मामलात भी हम लोगों को क्लियरली बताया गया है हमारी आसानी के लिए. सुभान अल्लाह. तो हमें डेफिनेटली अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए. एंड वी हैव टू लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज फॉर द मैसेंजर्स. हमें उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए. अगेन आई रिमाइंड, नो एग्जैजरेशन प्लीज. द फिफ्थ पिलर, लास्ट डे, यौमुल आखिरा. इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? ईमान इन द रिसरेक्शन. जैसे ही असूर, जो सेकंड ब्लो होगा, वो फूंका जाएगा तो अल्लाह ताला सारे लोगों को फिर से जिंदगी देके खड़ा कर देंगे. दिस इज पॉसिबल फॉर हिम एज ही इज एबल टू डू ऑल थिंग्स. अल्लाह ताला ने पहली बार किए थे, दूसरा भी कोई मुश्किल नहीं है इस चीज में बिलीव करना कि द पीपल विल स्टैंड बिफोर अल्लाह वाइल्स दे आर नेकेड एंड अनसर्कमसाइज्ड, यानी वो बिना कपड़ों के और सरकमसाइज नहीं हुए होंगे. इस हालत में उनको दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा यौमुल आखिरा में. ईमान इन द अकाउंटिंग एंड रिट्रीब्यूशन, कि सबका हिसाब होगा. Everyone will be brought to account for their deeds and rewarded or punished for them accordingly. फिर उसके बाद ईमान इन जहन्नम एंड जन्ना. We must believe, हमें बिल्कुल 100% यकीन होना चाहिए कि जन्ना और जहन्नम forever everlasting places होंगे. And Jannah, the place of bliss and delights for the नेक and obedient people, जिनको अल्लाह ताला दाखिल करना चाहे बिलीवर्स को, उनका forever ठिकाना इंशाल्लाह जन्ना होगा. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us and give us the highest status with our loved ones in Jannah. Amin ya Rab. आमीन. And Jahannam, the place of punishment and torture for the disbelievers. ये eternally है, forever है. हाँ? May Allah protect us from Jahannam and the azab. Amin ya Rab. The fourth point is iman in everything that will occur after death. यानी जो वो सारी चीजें, सुभान अल्लाह, हर एक शय जो एक्सप्लेन की गई है कुरान और हदीस में, कि जो जिस तरीके से सकरात और जिस तरीके से रूहें कब्ज की जाएंगी, जिस तरीके से आज़ाब अनाज़ुबिल्लाह, I mean I really get scared to mention, but जो कब्र का मामला होगा, may Allah make it easy for us, for all of us and for our loved ones who are dead या रब. But ये जितने भी ट्रायल ऑफ ग्रेव है, जो क्वेश्चनिंग है, द पनिशमेंट है, जो आसानियां है, वो सब कुछ उस पे 100% यकीन होना. तो आज़ाबुल कब्र और नेमा दोनों चीजों में बिलीव करना. तो ये इन रिगार्ड्स टू यौमुल आखिरा. अब इसके क्या फ्रूट्स हैं? द डिजायर एंड ईगरनेस टू डू एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस एंड होप फॉर द ग्रेट रिवॉर्ड. यानी उसी के पीछे आपको दौड़ना है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लीज करूं, क्योंकि ये सारी मुसीबतों से मुझे छुटकारा पाना है, ये सारे प्रॉब्लम से मुझे अल्लाह की मदद चाहिए. और मैं इंशाअल्लाह, बोलते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुस्नुल खातिमा,
हमारा हुस्नुल खातिमा हो, हमें उन कैटेगरियों में शामिल हो जहाँ पर कोई हिसाब किताब ना हो, मुकर्रबों में शामिल हो, यानी इसकी जद्दोजहद करनी है। लेकिन अगेन आई विल रिमाइंड यू हियर कि आपके डीड्स आपको जन्नत नहीं ले जाते हैं, अल्लाह की मर्जी, सिर्फ अल्लाह की मर्जी। तो कोशिश ये करनी है कि अल्लाह को राजी करना है, एंड राजी करने के फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो the desire and eagerness to do acts of obedience and hope for the great reward. और एक बात और जहन में रखें, कई बार ये भी many times I have been posed this question कि हम एक certain good deed करते हैं अच्छी तरह से, खालिस नियत से, only for the sake of Allah, लेकिन वसवस आ रहा होता है, is it accepted, is it done rightly, is it done or not, ये शैतान की तरफ से है। आपने एक नेकी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, you have to hope rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है, वो बिल्कुल हर रियाकारी से और हर चीज से प्योर रही है, तो डोंट वरी, अल्लाह ताला इज फैंटास्टिक इन हिज हिसाब, एंड इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को आप करते जाएं, बस करते जाएं नेकियां, उसके बारे में वसवस ना करें। The fear of committing sins and being pleased with sins for fear of the great punishment, यानी जब आपको ये पता होता है कि नतीजा क्या होगा एक पर्टिकुलर सिन का, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली खौफ पैदा होगा, आपको वो पनिशमेंट में बिलीव करना है कि ये है, ये लाजमी लागू होगी। जब अल्लाह ताला रहमान और रहीम है तो वहां पर वो स्ट्रांग और जाबिर भी है, बहुत अदल वाला है, हिसाब पक्का है। तो ये चीज में भी आपको बिलीव रखना है कि जहां पर आसानियां हैं और नेमतें हैं वहां पर पकड़ भी है। And then consolation for the believers of whatever worldly things he has missed, यानी इस दुनिया में अगर आपको कोई भी, जैसे कांटा भी एक चुभता है तो उसका कंपनसेशन है, अगर कोई एक नेमत आपसे छीन ली जाती है, कोई एक नेमत से आप महरूम हो जाते हैं, आप सब्र करते हैं, आप अल्लाह से रिवॉर्ड का तकाजा करते हैं, दिल में ही सब्र करके अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, तो आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह you will be compensated in a much better way. So you should say alhamdulillah ala kullu hal. Coming to point number 6, which is to believe in the pre-decree al-qadar. It's good and it's evil. I'll give a reference of Surah Al-Qamar, which is Surah 54, verse number 49. We have created all things in accordance with the pre-decreed measure. यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज को जो क्रिएट किया है वो अकॉर्डिंग टू द प्री डिक्रीड मेजर है, यानी बेस्ड ऑन द कदर ही हैज क्रिएटेड इट। इसके 4 मैटर्स क्या हैं? टू बिलीव दैट अल्लाह सुब्हाना व तआला ऑलवेज एंड इटर्नली नोन एवरीथिंग, यानी इसमें पक्का पक्का बिलीव होना है कि आपकी कदर जो है आपके पैदा होने के 50,000 साल पहले लिखी गई है। There is another hadith जिसका मफहूम है कि the pens have been lifted and the inks have been dried. तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, it is based on qadar. To believe that Allah wrote all of this in the preserved tablet, Allah लौह महफूज में ये लिखा हुआ है। और इसको कंफर्म करने के लिए I'll give a reference of Surah Al-Hajj, Surah 22 verse 70. Do you not know that Allah knows whatever is in the 7 heavens and in the 7 earths? Nothing of that is hidden from him. The knowledge of all that is contained in Lawh al-Mahfuz, and it is something easy for Allah subhanahu wa ta'ala. It is very easy for him. Nothing is difficult for him. To believe that everything in existence exists by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, including actions. To confirm that, I give you references from Surah Al-Ibrahim, Surah 14, verse 27. And Allah does whatever He wills. अल्लाह की तकसीम है, किसको कितना रिस्क देना है, किसको कितनी औलाद देनी है, किसको कितना हुस्न देना है, कितना पावर देना है. It's Allah's will. Another verse of Surah An-Nisa, Surah 4, verse 90. And if Allah has willed, He would have given them power over you and they would have fought you. Then again, to believe that everything in existence is created by Allah subhanahu wa ta'ala. The thing itself is created and its attributes and activities are also created. So the entire thing is actually the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So what are the fruits of Iman in Qadr? Dependence upon Allah after carrying out the necessary means to an end. यानी आप पूरी कोशिश कर लें, सब कुछ कर लें, everything you do.
एक जो फार्मर है वो सीड डाल रहा है, वो उसको मैन्योर डाल रहा है, वो धूप दे रहा है, वो पानी दे रहा है, वो खाद पानी ख्याल सब कर रहा है, लेकिन वो फूट के सीड जो है उसमें से जो अनाज निकलेगा उसमें अल्लाह की मर्जी है। बारिश आएगी कि सैलाब आएगा उसमें अल्लाह की मर्जी है। तो हम जो हैं 100% अपना लगा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कुछ हम अपने तरफ से जो है करने वाले काम वो कर लेंगे, लेकिन द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज व्हाट अल्लाह विल्स. That one is not amazed with themselves upon success as it is due to what Allah decreed. तो हमारा कमाल कोई नहीं है इसमें, हमारी इंटेलेक्चुअल या हमारी कारीगरी नहीं है. इट इज ऑलवेज व्हाट अल्लाह हैज डिक्रीड. चाहे आप यानी कितना भी, जैसे इसका मैं कई बार ये एग्जांपल भी सोचती हूँ, लाइक लोग जो हैं शादी रिश्ते जब कर रहे होते हैं इतनी तहकीक, इतना ये उधर इंक्वायरी इधर इंक्वायरी, ये सवाल वो सवाल, सब कुछ कर लेते हैं. अल्टीमेटली जो होता है वो शादी कितनी कामयाब होगी नहीं होगी वो सब कदर. हर एक चीज में यही मामला है, in every aspect of our life. I'm not saying that we don't take the steps. I'm saying we will do our best, because that is the tawakkul, rule of tawakkul, right? कि you tie your camel and then you place your tawakkul. तो हम अपने तरफ से कितना भी कर लेंगे, लेकिन जो end result होगा that is based on what Allah wills. And then being content with that which occurs because of Allah's decree. यानी जो लोग सब्र करें अल्लाह की कदर से और अल्लाह की मर्जी से, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ कामयाबी. तो आपको ये चीज अपने जहनों में डालनी है, क्योंकि जब हमने सब्र का मैटर लिया था उसमें भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि वो सब्र के जो 3 कैटेगरीज थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सब्र वो है कि हम अल्लाह ने जो हमें कहा गया है वो चीज़ों को करना, अल्लाह ने हमें जो जिन चीज़ों से मना किया है उससे पीछे हटना, और फिर उसके बाद अल्लाह की कदर में बिलीव करना अगर कोई कलामिटी या ट्रायल आ जाए. तो सब्र and being content, and again saying alhamdulillah ala kullu hal, is something which is the best thing that we can do, and everything is based on qadar, and all the things are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala alone. So we do our part and place our 100% tawakkul on him, and this is also applicable in our 6 pillars of iman. Any question, girls, so far? We have finished dot at 9 o'clock, so I will just take few questions. Okay, let me ask you some true or false then. You can unmute your mics. The iman in our hearts is sometimes more, sometimes less. Yes. True. Why? क्योंकि जब हम नेकी करते हैं तो ईमान बढ़ता है, जब हम लोग गुनाह करते हैं तो डिक्रीज होता है. Fantastic. Jazakallah khair. That was amazing. Okay, second question. Iman means to believe firmly with our hearts only. No, false. Why? Why? Because whatever is inside our heart should matches our action as well. That's why. Right. It should match with our tongues, with our words, and our limbs and our actions as well. Action. Very good. Jazakallah khair. Third one. Good deeds are a part of iman. Yes. Yes. Why? Because Islam teaches us to do kind things, nice things to other people. हर चीज डिपेंड करती है हमारी इनर फीलिंग, हमारे ईमान पे, और हमारा अगर जितना ईमान करीब होगा उतना ही हमारी काइंडनेस, सिंपैथी और वो ज्यादा इंक्रीज करेगी. That's what I think. Very nice. Jazakallah khair. Number 4. Fitra is the name of the Eid prayer prayed in Eid al-Fitr. True or false? True. False. Somebody said true. I want the explanation of that true. Yes, sorry. Fit- Fitra, yeah. Fitra is, Yes. we are born on fitra, means everybody is a Muslim when he's born. Right. It is our natural disposition, right? Okay. मुझे अभी ना कदर को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली नाउ. इसके बारे में एक छोटा सा एक आपको इंसाइट दूंगी और फिर इंशाल्लाह विल क्लोज फॉर द डे. I don't want to exceed the time, but this is something related, so I just want to continue. Is it okay if we exit 5 minutes? Yeah. Yes, no problem. Okay, I have a question in regards to qadar now. When I said that everything is in the qadar,
So can I say कि अगर मैं कुछ बुरे अनाज़बिल्ला मैं अगर कुछ बुरे काम कर रही हूँ तो वो मेरी कदर में है? नहीं, Yes. How would you combat that? How would you answer that? बिकॉज अल्लाह ताला ने इंसान को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसीलिए दी गई है ताकि वो बता सके ये गलत है और ये सही है। कुछ नहीं, but चीजों में ultimately it is in the qadar, no? So I'm just following what is in my qadar. बाजी, क्योंकि जब हम लोग पैदा होने से पहले 50,000 साल पहले जो है हमारी तकदीर लिख चुके हैं जी। और वो लोहे महफूज में महफूज हो चुकी है, अभी वो कुछ बदलने वाला नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने लिखे हैं तो वो वही हम करेंगे। But that is what precisely मेरा question है कि जब मेरी कदर में अल्लाह ना करे नौज़ बिल्लाह अगर ये bad deeds लिखी हुई है तो उसमें मेरा contribution क्या है फिर? It is not a forced decision. Mhm. अल्लाह ने forcefully ये नहीं लिखा है. He knew what we are going to choose और वो लिखा गया है. Fantastic. This is what I wanted to tell you. And Jazakillah khair to all those who attempted. It was a kind of a tricky question. And मुझे आपको सिर्फ इसमें दो points बतानी है क्योंकि ये कदर को लेकर ये जो pillars of Islam है, pillars of ईमान है, इसमें कदर वाले पिलर को लेकर काफी कंफ्यूजन है. एंड सुभान अल्लाह इसके अंदर 2 ग्रुप्स बने हुए हैं जो थोड़े डेविएटेड है. मैं वो बस उनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 ग्रुप्स हैं. वन ग्रुप इज कॉल्ड जबरिया एंड वन ग्रुप इज कॉल्ड कदरिया. ये दोनों जबरिया और कदरिया आर डेविएटेड ग्रुप्स. क्यों ये डेविएटेड है? क्योंकि जो जबरिया है वो उनका बिलीफ ये है कि द स्लेव इज फोर्स्ड टू डू हिज एक्शंस व्हिच इज नॉट राइट. We have been given a choice, we have taken the decision, but ये decision की information अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है and that is recorded, right? So we believe कि choice हमारी है, decision हमारा है, but अल्लाह को इसकी खबर है कि हमारा decision क्या होगा and that is recorded, which means Allah is not forcing his choice upon us. But Jabariya people, they believe that the slave is forced to do his actions. And Qadariya, what they believe in, वो ये believe करते हैं कि man is totally independent and Allah subhanahu wa ta'ala नौज़बिल्लाह he doesn't know the actions of the slave until he actually does them. यानी उनकी belief system ये है कि इंसान जो है वो totally independent है and Allah subhanahu wa ta'ala को नहीं पता होता है जब तक कि वो इंसान वो action ना ले ले. So that is the different sect of Jabriya and Qadriya और इनकी ये deviated thoughts हैं और इस वजह से I mean that is a wrong thinking about qadar. हमारी belief ये है कि everything is recorded but Allah has not forced anything and हमारा ये belief भी है कि Allah knows everything. So that's why suicide is haram. Sorry? That's why मुझे एक suicide सवाल करना है. I said that's why suicide is haram. खुदकुशी इसीलिए हराम है क्योंकि वो आपका डिसीजन है. Yes, आपका decision है वो and that is why. But of course it is a part of qadar, it is recorded and Allah knew that that choice will be made, wrong choice will be made by the. Yes, किसका सवाल कुछ था? हाँ जी, मुझे ये कहना है कि इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ. देखिए, ये कहा जाता है ना कि जब रूह आती है दुनिया में तो वो ऑलरेडी उसकी एज, उसका रिज़्क लिखा हुआ होता है, जिसमें एक और चीज भी मेंशन्ड है कि वो शकी होगा कि सईद. फिर अगर वो शकी है या सईद है तो वो उसके मुताबिक ही अपने सारे वो उसका कैरेक्टर भी तो वैसा ही होगा ना. Yeah, but again the choices जो है वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना कि हमारी जो choices रहेगी उसी के बेस्ड पे ये information recorded है. Because Allah is the Malik, Allah is the creator. वो आपके पैदाइश के पहले से ही 50,000 साल पहले he knew what you will do, what are your actions, what will be your choices. तो उसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को है. But वो अल्लाह ने लिखे हैं इसलिए आप कर रहे हो ऐसा. It's not the other way around. ओके. यानी इसको ना ये समझने के लिए थोड़ा सा है ना यानी आपको फोकस करना पड़ेगा and you have to make yourself very clear about it. Allah will never force anything upon us. Okay, we are ashraful makhlukat, the power of choice is in our hands. subhanallah. जो decision making रहती है वो हमारी ही choice है लेकिन हम क्या choose करेंगे इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को है and that has been recorded. लेकिन there are 2 things I will just mention here, these 2 things here and then we will close inshallah today's session. ये 2 चीजें हैं जिसके अंदर power है to change the writing. अभी है ना एक्चुअली इसकी डेप्थ में हम लोग अगर जाएंगे ना there are different types of writings also. मसलन there is one master copy, then there is something which keeps on changing annually. तो उसके अंदर जो है दुआ है which has the power to change and the second thing is nazar, evil eye, that has the power to change.
तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी, बिकॉज सिंस इट्स नॉट इन आवर करिकुलम आई एम नॉट टचिंग दोस पॉइंट्स, बट मुझे पता है अभी अगर मैंने ये टॉपिक छेड़ा है तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पैसा बन जाएगा। बस आई आल्सो मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ ये। तो खलास इंशाल्लाह we will leave it here because I don't want to confuse. मुझे सिर्फ आप लोगों को उतनी फीड देनी जितनी हम लोग जिसे जैसे लेवल पे जा रहे हैं ना उस लेवल पे देना है. So don't as of now don't worry about anything else. Just believe that qadar has been we believe in qadar definitely, and we believe that Allah is not forcing anything on us. The choice is ours, but जो decision या choice हम करेंगे उसकी खबर अल्लाह सुब्हाना व ताला को है. बस believe in these things and that's enough for the time being. इंशाल्लाह इसकी जब हम डेप्थ में जाएंगे, जब हम डिस्कशंस में जाएंगे तो वी माइट डिस्कस इंशाल्लाह, बट नॉट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ राइट नाउ. ये जो आज हमने जो डिस्कस किया उसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप बेशक सवाल करें इन ग्रुप या इन पर्सन. ग्रुप में करेंगे तो सबकी इस्लाह हो जाती है, वरना आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू पोस्ट एज मच एज इन्फॉर्मेशन इन द ग्रुप एज वेल. मैं ऑडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी जूम पर उसकी भी मैं पोस्ट कर रही हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर फ्री टू शेयर, यू आर फ्री टू रिफर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. May Allah accept this little effort from us, and may Allah accept it from us and make us straight muwahid and include us in muqarrabun. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Any mistakes, any errors is from my side. May Allah forgive. Baki Allah knows the best. Okay guys, inshallah फिर होती है मुलाकात on Saturday. जज़ाकल्लाह खैरान. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.